Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, तो sir. कल की क्लास में हमने जो है कूलिंग लोड एस्टिमेशन तक कर लिया था. Okay, we discussed about the various loads actually, and today we are going to discuss about heating load estimation. तो जैसे when we talk about cooling load estimation, normally that is the case of summers actually, that how much heat we have to remove to maintain the condition in a particular room or space. So there we calculate the cooling load estimation. Sometimes we have to calculate the heating load estimation also. For example, in winter months, we have to heat the room, so we have to calculate the heating load, how much heating load is required. So you can see it from here. An estimate of the heating load is made on the basis of maximum probable heat loss of the room or space to be heated. Okay. Thus, the plant for heating system is to be so designed that its capacity is just sufficient to meet the heating load requirement, which develops most severe weather conditions when most severe weather conditions occur. So that means it's clear that the day on which during a particular winter season, there will be a particular day on which you will have the lowest temperature conditions. So based on that, you will have to calculate the value of the heating load. Okay. In this respect, very brief periods of severe weather need not to be taken into account. So there is a possibility that the temperature, for example, if I take the condition of Delhi, the temperature may go down as to 2 degrees Celsius also, but that would be for a very small duration of the time. But if you think that, if you say, then 4 degrees Celsius is quite common, that the temperature may reach 4 degrees Celsius and it may remain at that particular level for substantial time actually, maybe on continuous days also. Okay, so we will go for such conditions, such weather conditions which remain for a particular duration of time. For example, 2 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 2 डिग्री हो सकता है कि 15 मिनट 20 मिनट के लिए रहे, तो उस सीवियर वेदर कंडीशन के लिए हम कभी भी हीटिंग लोड कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट वी कैन कैलकुलेट इट फॉर से 4 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस हुआ and it's going to stay for 2 3 days or 4 days, then we should design our system for that and we have to calculate based on those conditions. So what we will consider, we have to consider the transmission heat loss. The transmission heat loss from the walls, roofs, etc. is calculated based on the design outside and inside air temperature difference. So we will take see this particular equation here. You can see here Q is given by UA Ti minus TO. So Ti is the inside temperature, TO is the outside temperature. So inside temperature is higher, and we are taking the help of the overall heat transfer coefficient and calculate what is the transmission heat loss from the walls or from the some roof or say maybe glass area. Okay. Thus, no allowances need to be made for the walls and the roof being exposed to the sun. Okay, because in this particular case, if you are taking the sun load, see, sun is basically adding the heat to the room. Okay, and that will be available at the time when the temperature is high. So at that time the load is also less. So basically in winter the load will be maximum during night time actually. So we have to consider that particular time actually. Also the time lag and decrement factor are to be ignored. So you haven't studied about this time lag and the decrement factor, so forget about this. Solar radiation, there is generally no solar radiation present and hence there is no solar heat gain at the time of peak load, which normally occurs in the early hours of the morning. So early hours of the morning means the peak load is going to remain when its sunshine is not there actually. Then we can also consider the internal heat gains, for example, heat gains from the occupants. So it will reduce the load actually, lights, motor, and machinery, etc., and diminish the heat requirement. For example, the load requirement, heating requirement is 12 kilowatt for a particular space, and already there are certain machineries inside the room, so that load requirement will be reduced
So these negative loads should be accounted for in applications such as theaters, assembly halls, stores, office building, etc., where these loads are constantly present. So naturally, it has to be constantly present. If, or if it is for a small duration of time, maybe for half an hour, then you will not consider it. But allowance of these loads must be made only after careful consideration. An important aspect to keep in mind is the use of the space at night, weekends, or other unoccupied period. So वही बात है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये consider करना. So what you can do is you can go about this numerical problem. So I have explained you about the various load. So probably you may not be able to understand all the things which are given in this particular numerical problems, but try to do it. See wherever you are having some problem. Okay, for example, they are giving you the densities, they are giving you the roof, floor, and fenestration. Fenestration means the window area actually. Okay, so you are giving all those things, and the solution is also given here in the book. So you can read it and you can see how the load calculation has been done. Only thing is when you will reach here, there is some correction equivalent. You can see it here. This correction equivalent you have not studied because this is given in the previous chapter. So don't worry about that. Just see it here, and based on it, whatever the calculation is given, you just see it, and then you can see how they have done the calculation. Other things are quite simple actually. It's all based on the heat transfer concepts. Okay. So you can, I think, try this, give a try to this numerical problem. So all lot of things are given in this. So try to see it. Okay. Now I am going to the next topic. See, it is the psychrometric calculations for cooling actually. Before I proceed to this, I would like to show you the diagram here. This is the psychrometric chart actually. So I think whatever I want to tell you can be made clear from this diagram only. So in this diagram, you can see there are inside design condition and outside design condition. All those things are shown to us. Okay, just a minute. Wait for a second. I'm trying to use the pencil actually, because in PDF this writing is a little bit difficult actually. So just a minute, I have seen it earlier also. It can be done. I don't know why it is not coming. Okay, so I will use this. This is the outside design condition O. This is the inside design condition I, and this is the Grant sensible heat factor line, which is shown here from 1 to S point actually. Okay, and 2 is this. This is the you can say supply condition, or the this line is the room sensible heat factor line, and this is the line joining the inside design condition and the outside design condition. You know that the mixture condition always lies at point number 1. Okay, it depends upon the amount of the fresh air, that is the ventilation air, and that of the uh, recirculated air. Okay, so what I want to say is, for example, this is the room here. Okay, and here we have the cooling and humidifying coil. Okay, so I'm yes, this is the fan here, and here you can see this is the outside air or the ventilation air, and this is the recirculated air part. Okay, it's this, you already know everything. This is the mixing condition. You can also call it as 1. Okay, so mixing point is point number 1. So what happens actually, uh, you are given with the bypass factor of the cooling and dehumidifying coil, and you know this everything depends upon this bypass factor. Okay, and for a particular space, like I am considering there is a room here. Okay,
for this room, we know that we have some sensible load, we have some latent load, and we know the fresh air also. We know that how much fresh air is required. So, for example, 80% of the recirculated air is there, and 20% of the fresh air is there to compensate the odors which would be present in the room or to maintain the freshness of the room. So we are taking the fresh air. So once the fresh air part is fixed, okay, outside or the ventilation air part is fixed, it is 20%. We know it. Okay. Now it means room sensible heat and room latent heat loads. These are also fixed actually. Okay. This is fixed. When I say fresh air, it means I am fixing the outside air sensible heat. I am also fixing the outside air latent heat. And the sum of all these three means room sensible heat plus outside air sensible heat plus room latent heat plus room outside air latent heat. Okay, if this part is fixed, it means that the grand sensible heat means or the grand total heat, this will be fixed. Okay, ये fix हो गया. So इसका मतलब ये हुआ once the grand total heat is fixed, it means it is comprising of, just a minute, it is comprising of two things. Grand total heat is equal to grand sensible heat plus grand latent heat. Okay, और ये grand sensible heat क्या है? Room sensible heat है, outside air sensible heat है, और latent heat दो पार्ट हैं इसके, room latent heat है और room sorry outside air latent heat है. Okay, so it means the grand sensible heat is fixed. When the grand sensible heat is fixed, I can calculate grand sensible heat factor. Okay, this will be equal to grand sensible heat divided by grand total heat. So this is fixed actually. तो अगर ये fixed है grand sensible heat factor, suppose it is point, say I call it as 0.6 for example. So I know that once the grand sensible heat factor is fixed, the grand sensible heat factor line will also be fixed. Okay, grand sensible heat factor line, it gets fixed. ये फिक्स हो जाएगी. इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये फिक्स हो गई तो जब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, see this is the diagram which I am psychrometric chart if I am showing it. Now suppose this is the outside condition and this is the inside design condition. Okay, and let us say initially this is the mixing condition. This is point number 1 or you can call it as point number M also. अच्छा, हमारे पास रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन भी है विच इज हियर आई हैव ड्रॉन इट. यहाँ से अगर मेरा बाईपास फैक्टर, इफ आई एम गिवन विद द वैल्यू ऑफ द बाईपास फैक्टर, से इट इज 0.1, so I know I can always locate this particular point. Okay, this is the supply condition and this is coil ADP. You know about it. This is coil ADP. Now whatever the things I have just told you कि ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन फिक्स्ड है. अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मान लो ये 0.1 नहीं हुआ. अगर 0.1 नहीं हुआ तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0.2 हो. सपोज इफ इट इज 0.2, so because the grand sensible heat factor is fixed, so what will happen? This line will be then passing from here actually. It will be going something like this. Okay, यहाँ पे आ जाएगा जो अपनी सप्लाई कंडीशन है. It will shift to this particular point, say S dash, or I can also call it as 2 dash. Okay, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. This is what is being explained here in the diagram actually. तो ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यही शो किया है कि जो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है वो फिक्स है, क्योंकि जो टोटल लोड है, क्योंकि जब मैंने आउटसाइड एयर की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया तो मुझे मालूम है कि आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है, उसका ड्राइबल टेम्परेचर कितना है, उसका वेट टेम्परेचर कितना है. इफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड, सो क्या होगा कि जो आउटसाइड एयर का सेंसिबल लोड है और आउटसाइड एयर का जो लेटेंट लोड है वो फिक्स्ड हो गया, और रूम सेंसिबल लोड और रूम लेटेंट लोड तो पहले से फिक्स्ड है. तो इसका मतलब ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर जो है फिक्स हो गया.
ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर फिक्स होने का मतलब है कि जो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है वो फिक्स हो गई। अब क्या है यहाँ पे जो शो किया है पॉइंट नंबर 2, अगर आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखोगे तो ये मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन मानी हुई है। तो इसके बेसिस पे मैं जो है रूम में कितनी एयर सर्कुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर बाईपास फैक्टर बढ़ेगा तो पॉइंट जो है 2 डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन होगी वो जो 1 से 2 पे लाइन ड्रॉ की हुई है, 1 2 एस लाइन जो ड्रॉ की है ये वाली, ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके पैरेलल ही चलेगी हमेशा। अगर मेरा बाईपास फैक्टर बढ़ भी गया, 2 डैश पे भी आ गया, तो लाइन 1 डैश 2 डैश और ये जो एस डैश शो की हुई है दिस विल बी पैरेलल टू द ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। तो अब ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन चेंज हो गई। ओके, क्योंकि बाईपास फैक्टर चेंज हो गया। अगर बाईपास फैक्टर कम होता है तो ग्रैंड सेंसिबल हीट लाइन जो है पैरेलल ऑपरेट करेगी। इससे आप लोग देखो क्या हो रहा है, जैसे ही ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन की लोकेशन चेंज होती है तो आउटसाइड एयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आउटसाइड एयर की क्वांटिटी उतनी है क्योंकि वो तो वेंटिलेशन पर्पस के लिए रखी हुई है। बट हाँ, जो रूम में एयर हम सर्कुलेट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी वेरी कर जाएगी। वेरी क्यों कर जाएगी? क्योंकि हम जो है कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, देखो पिछले पेज पे मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। ये जो फार्मूला दिया हुआ है लास्ट लाइन में, ये जो इक्वेशन है CMMD, दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग एंड इट्स वैल्यू इज रूम सेंसिबल हीट जो कि फिक्स्ड है डिवाइडेड बाय 0.0204 TI माइनस TS। ओके, TI की वैल्यू फिक्स्ड है, जो रूम का इनसाइड डिजाइन कंडीशन है वो फिक्स्ड है। लेकिन एस की जो कंडीशन है वो बाईपास फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर एस जो है नियर टू आई आएगा तो डेल्टा टी कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी ऑफ जो एयर ड्यूमिडिफाइड है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, बाहर की एयर की क्वांटिटी सेम रहेगी बट जो हम रूम एयर की क्वांटिटी है जो सर्कुलेट करेंगे वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमें रिसर्कुलेटेड एयर है उसकी क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम रिसर्कुलेटेड एयर की क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो मिक्सचर कंडीशन है ना वो चेंज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे वो पॉइंट फिक्स नहीं है। वन वन जो है कभी 1 डैश पे आ रहा है, कभी 1 डबल डैश पे जा रहा है। और एक्सट्रीम कंडीशन में जब बाईपास फैक्टर 0 है तो 1 स्टार से लेकर 2 स्टार पे पहुंच जाएगा। और ये जो पॉइंट है 2 स्टार या S स्टार, ये कॉयल एडीपी भी शो कर रहा है और रूम एडीपी भी शो कर रहा है, तो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे। तो आई आई होप कि दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं CMM डिह्यूमिडिफाइड निकालना चाहता हूँ इसमें, तो ये फार्मूला जो है 19.9 इक्वेशन में दे रखा है। हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल सेंसिबल हीट ले लिया। टोटल सेंसिबल हीट को हमने, अब देखो टोटल सेंसिबल हीट में क्या है, इसमें आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट और साथ में रूम सेंसिबल हीट दोनों को ले लिया है। तो अब जो है ये प्रोसेस बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस डायग्राम में। आई एम सेइंग दैट दिस इज नाउ हैपनिंग हेयर। टोटल सेंसिबल हीट कहाँ पे है? द टोटल सेंसिबिलिटी इज हेयर, जो कॉइल के ऊपर है। तो ये कंडीशन पॉइंट नंबर 1 है और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है या एस है। ओके, तो बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस है T1 और T2 का। और T1 T2 यहाँ पे चार्ट में देखो कहाँ पे आ रहा है, ये जो है ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर वाली लाइन है ना, ये है T1 T2 की लाइन। तो यहाँ पे नीचे हमने जो लिया हुआ है ये वैल्यू जो ली है, ये ये ली हुई है, ये टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है, क्योंकि इसमें टोटल सेंसिबल हीट आ गया। टोटल सेंसिबल हीट तो हम सिर्फ एयर कंडीशनिंग अपरेटस में रिमूव कर रहे हैं। तो ये फार्मूला पहले भी आपको पता ही है। ओके, तो इस तरह से ये थोड़ा सा शो किया है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं आगे इन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है। नो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बाईपास फैक्टर? हालांकि मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है अभी अभी, तो फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ द बाईपास फैक्टर, यू कैन सी इट हियर। द इफेक्ट ऑफ बाईपास फैक्टर of the apparatus may now be analyzed in detail. It may be noted that in air conditioning of any building, the following things are fixed, irrespective of the bypass factor of the apparatus. कौन कौन सी चीजें फिक्स्ड हैं यहाँ पे? एक तो रूम सेंसिबल है, लेटेंट हीट गेन्स हैं, ये दोनों फिक्स्ड हैं। और वेंटिलेशन एयर क्वांटिटी ये भी फिक्स्ड है। ओके, मैंने यही बताया आपको भी थोड़ी देर पहले। As a result of these two, the total sensible heat, total latent heat gains, and hence the grand sensible heat factor are also fixed. Hence, the slope of grand sensible heat factor line cannot be changed. Thus, to satisfy the condition of grand sensible heat factor line,
will float parallel to the itself depending upon the bypass factor of the apparatus in such a manner that leading states 2 2 dash 2 double dash etc line lie on the room sensible heat factor line। तो ये जो है, आप अगर हम ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, तो यही एक्सप्लेन किया था। ये रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन के ऊपर ही 2 डैश भी है, 2 भी है, 2 डबल डैश भी है और 2 स्टार भी है, सारा यहीं पे लाई करेगा। ओके, another outcome of this is that mixture state 1 also correspondingly float in the position along the line IO। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, जो इनिशियल इनसाइड स्टेट और रूम स्टेट को और आउटसाइड स्टेट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो हमारी मिक्सिंग स्टेट है वो भी वेरी करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि जो क्वांटिटी है रूम एयर की सर्कुलेट जो हम कर रहे हैं वो डिपेंड करती है बाईपास फैक्टर के ऊपर। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बाईपास फैक्टर का? बाईपास फैक्टर का इफेक्ट है, नंबर पॉइंट 1 पढ़ लो। द सप्लाई एयर स्टेट 2 मूव्स टुवर्ड्स द रूम स्टेट। किस केस में? जब बाईपास फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाईपास फैक्टर इंक्रीजेस, तो क्या होगा? जब बाईपास फैक्टर इंक्रीज होगा तो सप्लाई स्टेट 2 जो है वो रूम स्टेट के पास जाएगी। तीसरा क्या है? जो डीह्यूमिडिफाइड राइस, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि कूलिंग कॉइल ने हैंडल करना है, या कूलिंग एंड ड्यूमिडिफाइंग कॉइल ने हैंडल करना है, वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देख लो, आपको यहाँ पे इस डायग्राम में शो कर देता हूँ। देखो, अगर लाइन जो है 1 डैश से, मतलब इस पॉइंट से 1 डैश से और हम 2 डैश पे आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये यहाँ से अगर मैं लेता हूँ वर्टिकली लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ पे कम हो गया। जबकि अगर ऊपर जाता है 1 स्टार से 2 स्टार के बीच में, तो टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया। तो जैसे जैसे बाईपास फैक्टर कम होता है, टेम्परे बाईपास फैक्टर इंक्रीज होता है, जो टेम्परेचर ड्रॉप है कूलिंग कॉइल के क्रॉस वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये याद रखना। लेकिन इसका एक और बैड इफेक्ट है, वो भी पढ़ लेते हैं क्या है, वो देख लो पहले। अगर हम बाईपास फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो कंडीशन जो है 2 स्टार होगी मिनिमम बाईपास फैक्टर पे, फिर जो है एस स्टार होगी, ओके, एस होगी, एस डैश होगी। तो सबसे मिनिमम जब कंडीशन है, जब सप्लाई कंडीशन 2 डैश पे है, तो जो उसका एडीपी है कॉइल का वो सबसे कम हो जाएगा, एस डैश पे आ जाएगा। ओके, एस डैश पे, एंड दिस इज द लोएस्ट एडीपी विच वी कैन गेट। और सबसे लोएस्ट एडीपी तब होगा जब बाईपास फैक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब जो सारी की सारी एयर है मिक्सिंग के बाद भी आई डैश पे आ जाएगी। ओके, so in that particular case the coil will have the lowest coil ADP। तो आगे पढ़ लेते हैं इसमें और क्या क्या है। अच्छा, जब ये टेम्परेचर डिक्रीज हो गया T1 माइनस T2, तो क्या हो रहा है? ड्यूमिडिफाइड एयर की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 देख लो। पॉइंट नंबर 4 क्या है? द फ्रेश एयर क्वांटिटी रिमेनिंग फिक्स्ड, द रीसर्कुलेटेड रूम एयर क्वांटिटी CMMI मस्ट इंक्रीज। क्योंकि टोटल ड्यूमिडिफाइड एयर क्वांटिटी, जो एयर जो हम ड्यूमिडिफाई कर रहे हैं वो बढ़ गई, तो जो वेंटिलेशन एयर है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए जो रूम की रीसर्कुलेटेड एयर है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें क्या होगा? apparatus dew point S is lowered and hence the running cost of the refrigeration equipment is increased। तो नेचुरल है, क्योंकि जितना लोअर टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा, आपको पता है लोअर टेम्परेचर रखते हैं तो लोअर टेम्परेचर हम रख कैसे रहे हैं? वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में अगर एवेपोरेटर टेम्परेचर डाउन होता है तो सीओपी डाउन होती है। सीओपी डाउन होने का सीधा सीधा मतलब ही यही है कि जो हमें एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। पांचवा क्या है? छठा क्या है? द कॉस्ट ऑफ कूलिंग अपरेटस हाउएवर इज डिक्रीज लेस कॉस्ट विद हाई बाईपास फैक्टर। ये अब देखो, ये एक उसका दूसरा है। मतलब अब हम, जब हम ज्यादा बाईपास फैक्टर हो गया तो जो फिन्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस में होंगी ताकि बाईपास फैक्टर ज्यादा हो सके, तो ऑपरेटर्स की कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। मिक्सचर स्टेट 1 मूव्स टुवर्ड्स आई। जैसे जैसे बाईपास फैक्टर कम होता है तो जो कंडीशन 1 है वो आई के पास आती है। डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे, देख लो। जैसे जैसे बाईपास फैक्टर 2 डैश पे आ गया तो मिक्सचर स्टेट जो है 1 डैश पे है, तो जितना ज्यादा बाईपास फैक्टर कम होगा मिक्सचर स्टेट जो है आई स्टेट के पास आती जाएगी।
सो आई होप दिस इज क्लियर. द रीसर्कुलेटेड एयर क्वांटिटी देयरफॉर इंक्रीजेस. तो ये भी क्लियर हो गया. इट इज सीन दैट व्हेन द बाईपास फैक्टर इज जीरो द एडीपी इज एट 2 स्टार and the process line is in the limiting position 1 star 2 star. This corresponds to minimum dehumidified and supply air quantity. तो जब बाईपास फैक्टर जीरो है तो उस केस में जो सर्कुलेट जो हमें रूम हेयर एयर की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी. ओके. तो आइट्रेशन जो कैलकुलेशन है वो आपको पता ही है. हम आइट्रेशन कैसे करते हैं जब बाईपास फैक्टर दिया होता है. तो उसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बोला था और पीछे समझाया भी था पूरा टॉपिक जो है. तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो. जो कैलकुलेशन बाय द आइट्रेशन प्रोसीजर दिया हुआ है दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर टू डिटरमिन apparatus dew point and dehumidified air quantity. Now this is very very important. Why it is important? क्योंकि इसमें हम जो है अब जब हम ये इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर का यूज करते हैं तो इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर आई थिंक यू माइट बी रिमेम्बरिंग. आपको शो कर देता हूँ दोबारा से अगर आप देखना चाहते हो तो. ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था. ये टॉपिक है हमारे पास. ये इक्वेशन 19.4 है. तो ये जो बाईपाया पास्ट आउटसाइड एयर लोड है रूम पे वो है आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट इंटू बाईपास फैक्टर. लेटेंट लोड भी इसी तरह से कैलकुलेट किया है. आउटसाइड एयर लेटेंट हीट इंटू बाईपास फैक्टर ये दोनों को मिला के और रूम सेंसिबल हीट में सॉरी रूम सेंसिबल हीट में जब आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट को बाईपास फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट आएगी. और इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट भी इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाईपास फैक्टर की हेल्प से. so it is not PBF, it is BPF actually, bypass factor. Okay. So effective room sensible heat factor you know is the ratio of effective room sensible heat divided by effective room sensible heat plus effective room latent heat. तो this you need to remember actually. जब हमने ये इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर लिया तो अब हमें जो है आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो क्यों नहीं पड़ेगी हम अभी देखते हैं क्यों नहीं पड़ेगी. सबसे पहले तो इस डायग्राम को देख लो आप. ये जो डायग्राम दिया हुआ है हमने अब देखो यहाँ पे ये एयर कंडीशनिंग ऑपरेटस शो किए इस पॉइंट पे. ठीक है. ये एसी ऑपरेटस है. इस एसी ऑपरेटस में जो इनसाइड एयर जा रही है. ठीक है. हालांकि ये इस एसी ऑपरेटस का कुछ बाईपास फैक्टर है लेकिन जो इनसाइड एयर है वो ऑलरेडी रूम डिजाइन कंडीशन पे ही मेंटेन्ड है. अगर वो बाईपास हो भी जाएगी एयर कंडीशनिंग ऑपरेटस से तो वो रूम के ऊपर कोई लोड नहीं डालती. रूम के ऊपर कोई भी लोड नहीं डालेगी. लेकिन जो आउटसाइड एयर है वो उसकी जो बाईपास हो गई एयर क्योंकि वो बाईपास एयर हो गई और इसके बिकॉज ऑफ द बाईपास फैक्टर ऑफ द एयर कंडीशनिंग अपरेटस इट पुट्स ए लोड ऑन द रूम एक्चुअली. तो उसको हमने डायरेक्टली शो किया हुआ है कि डायरेक्टली वो रूम में जा रही है. ठीक है. तो इसके बेसिस पे ये आपको पहले भी समझाया है मैंने पिछले लेक्चर्स में भी. तो ये जो लोड है इसके बेसिस पे ही हम इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके. तो इन्होंने यहाँ पे क्या शो करा है देखो. अब यहाँ पे पहले डायग्राम देख लेते हैं. देखो अब ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि आपने आई कंडीशन को लोकेट करना है विच इज़ द इनसाइड डिजाइन कंडीशन. ओ कंडीशन को लोकेट करना है. ओ ये रहा यहाँ पे है. ये आप लोकेट कर सकते हो. ये आई से ओ में जो लाइन जा रही है ये लाइन ये इनको ज्वाइन कर रही है. और वन कंडीशन जो है ये मिक्सिंग कंडीशन है. ठीक है. और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ये फिक्स्ड है. दिस यू नो कैसे ड्रॉ करनी है. रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन आपको पता है ये कैसे ड्रॉ करनी है. ये सारी लाइंस बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करनी है जैसे हम पहले ड्रॉ कर रहे थे. नो ओनली थिंग इज दैट जब ये ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन आपने ड्रॉ कर ली. ठीक है. अब जस्ट ए मिनट. ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे. देखो आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर पाओगे. मैं ये डायग्राम खोल लेता हूँ. एक मिनट. यहाँ पे हमने क्या किया. हमने यहाँ पे इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया. इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है. इफेक्टिव रूम जस्ट ए मिनट. इफेक्टिव रूम
सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रूम टोटल हीट। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर भी कैलकुलेट किया है, सपोज इसकी वैल्यू 0.8 है और लेटर से कि इसकी वैल्यू 0.7 आ गई, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं। और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है 0.65 है, ठीक है। तो मतलब लोड तो मेरे पास ऑलरेडी सारे थे, तो मैंने सब वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब मेरे पास इनसाइड डिजाइन कंडीशन भी है। ये देखो मैंने यहाँ पे ये ये मैंने पॉइंट आई लोकेट कर लिया। जस्ट अ मिनट।